Hi everyone. I hope all you guys doing well. Okay, I'm just here for tell you guys how to build links, and even we can call generate links. And we are on our dashboard, right? These dashboard everybody can see whoever has a sign in, right? Sign up and then you have your own login. When you go log in and then you come on dashboard, which is here, or you can go shop here, join here, about here, but we have to go for our dashboard. We are here. So here's a link builder. Okay, so I already have a retail store business store page um, link already built and join my page. If I give this link to anybody who want to join my team, they can use this. If somebody want to buy product from my link and they want to choose their own, so they can just go on this page and they can find a product which one they want. And next thing, we want to do the separate product links, and how we can do this, I can show you step by step. Hang tight. Example, I can go combo. This is a combo pack. I can go to the product. I have a product name here and item number. Item number is a 609, right? Still, then I can go back again because I want to do this one. These product, I want to generate the link. I can go back on dashboard and I can do link builder, create a link. I understand English, continue, and no discount, continue, product page, continue, and select the product. I can paste the product and let's see. I can do natural, but I can put the product number here. Let's see what they find. Okay, so this one I had a combo skin combo pack. So I can put now, maybe it's fine. Or I can just put the item number. Let's see. Yeah, here is it. So I think I have to just put the item number. Then we can select and continue, and link already generate. Copy link, and let's see. I can paste it here and we can check what it come up. Yeah, see, these products come up. So how we can generate the item link? I can go back again. I can review it. Any product you need from here, you think is the best selling, we can do that best selling too. Whatever is best selling product, we can come here and check that, and then we can select the item, and we know already is number like an item number. So then we can go back dashboard again, link builder, and then create a link. I understand, select language, and no discount, continue, product type, because we are doing individual product, right? Any product. This, select, continue, copy link, and we can check this link again, how it's work. And you guys can check too. Whenever you generate the link, go copy paste on any another browser you're not using, so that way
you know it's like working good, and even you have to check the info you providing somebody to buy the link from buy the product. If it's your link, you don't want anybody to buy without your link, because you're not getting anything then. Because we are getting a benefit from these if somebody buy from our link. I hope you guys understand. If anything else, leave in the comments, then I can review it again. अच्छा, सो बेसिकली ये जो आज का टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वेबसाइट जो है ना, जो आपको कंपनी की तरफ से एक वेबसाइट मिली हुई है, दिस इज योर ऑफिस। ठीक है, ये आपका ऑफिस है। और जिस तरह से आप अपने, फॉर एग्जांपल, आप रूटीन में अपनी कोई जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो, तो आपको जिस तरीके से आपका ऑफिस जाना और वहां पे बैठ के काम करना इंपॉर्टेंट है ना, इसी तरह से इस वेबसाइट को यूज करना आना और यूज करना बेसिकली डेली बेसिस के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब आपका ऑफिस है जिसको आपने डेली बेसिस के ऊपर एक दफा जरूर खोल कर देखना है, और आपने अपने स्टैट्स देखने हैं कि किस लेवल का मेरा बिजनेस जा रहा है। बिकॉज ये वो चीज है, यहाँ वेबसाइट से आपको पता चलना है कि मेरे कितने सीसीज या मेरा कितना वॉल्यूम जनरेट हो चुका है इस मंथ का, और मेरे कितनी अर्निंग हो चुकी हुई है लास्ट मंथ की। ठीक है, और आप अपनी नेक्स्ट मंथ की जो अर्निंग है उसका भी एक आप आइडिया ले सकते हो कि इतने सीसीज हो गए हैं तो मेरी इतनी अर्निंग हो सकती है नेक्स्ट मंथ में। और उसके अलावा आपकी जो टीम बिल्डिंग है या आपके जो फॉर एग्जांपल टीम के सीसीज हैं, वो भी आपको यहाँ से नजर आने होते हैं। तो ये वेबसाइट को एक्सप्लोर करना और इसको यूज करना आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो खैर इसके ऊपर आपको पर्टिकुलरली ये सब चीजें पता चलती हैं, आपकी अर्निंग्स एंड आप जो बिजनेस है, आपका जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। प्लस उसके अलावा आप प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो यहाँ से चेक करते हो। ठीक है, और वो मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगी। और उसके अलावा जो हमारा इन्वेंट्री सिस्टम है वो मैं आपको इसी सेशन के अंदर बताऊंगी कि पाकिस्तान में हमारा इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, और जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर हम किस तरह से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और जो चौथी चीज मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल, एक तो खैर आपके लिंक्स वगैरह किस तरीके से जनरेट होंगे वो, और आपकी जो प्रोडक्ट्स है ना वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो मैंने आपको आज बतानी है कि वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अपने कस्टमर्स को देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई C9 अफोर्ड नहीं कर सकता या कोई C9 लेना नहीं चाहता या ले नहीं सकता फॉर सम हेल्थ इशू, तो फिर उसको क्या क्या प्रोडक्ट जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आज के सेशन के अंदर कवर करेंगे। सो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि आपके सोर्सेज ऑफ अर्निंग, सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो हैं क्या क्या। एक तो ऑब्वियसली आप अपना रिक्रूट करते हो, तो पर पर्सन यू ऐड इन योर टीम कंपनी पेज यू फॉर दैट, राइट। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई है। दूसरा, आप रिटेल करते हो, तो जितनी आप प्रोडक्ट सेल करते हो उतनी आपकी अर्निंग होती है। तो ये दो आपके मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है इनिशियली ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। जब आप खुद सुपरवाइजर लेवल या उससे ऑनवर्ड्स होते हो तो फिर आपको टीम लीडिंग बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। वो दैट इज थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम जो कि आप अनलॉक कर लेते हो बीइंग सुपरवाइजर। ठीक हो गया। इवन असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर भी, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर भी आपका टीम लीडिंग बोनस आपको मिलता है। वो किस तरह से मिलता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन द थिंग इज कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब चूंकि मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया हुआ है, मैंने अपना स्टार्टर पैक ऑर्डर कर लिया हुआ था, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गई हुई हूँ, और मुझे बिजनेस को ज्वाइन किए हुए 1 वीक या 2 वीक्स या 1 मंथ या 2 मंथ हो चुके हैं, तो अब मेरा पे चेक जनरेट हो जाना चाहिए। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि अब मुझे बिजनेस को ज्वाइन किए हुए 1 मंथ हो गया है, तो मुझे बताएं कि मेरी अर्निंग मुझे कहाँ पर शो होगी, मेरा पे चेक कहाँ पर बनेगा। तो दिस इज नॉट योर जॉब, दिस इज योर ओन बिजनेस। आप इसमें काम करोगे तो आपको अर्निंग होगी। अगर आप रिक्रूटमेंट या रिटेल, इनिशियली तो आपने ये दो ही चीजें करनी है ना, आपकी ये दो ही मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम है, दो ही बेसिकली सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, उसमें से आप एक भी चीज पूरे महीने में नहीं कर पाए फॉर सम रीजन, आपने कोशिश नहीं की या कुछ भी ऐसा हुआ कि आप नहीं कर पाए हो, तो फिर आपका पे चेक नहीं जनरेट होगा। आपका पे चेक सिर्फ और सिर्फ तभी जनरेट होता है जब आप अपने रिक्रूटमेंट या रिटेल या फिर दोनों जो है वो कर रहे होते हो। अब रिटेल के ऊपर किस तरह से पे चेक जनरेट होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन पाकिस्तान, ठीक है, और आप किसी ऐसे कंट्री में प्रोडक्ट्स
अपनी रिटेल कर रहे हो जहां पर हेड ऑफिस है, तो आप शॉप लिंक देते हो अपने कस्टमर को। अब वो लिंक कैसे जनरेट करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वो शॉप लिंक जो है वो आप दोगे अपने कस्टमर को, और वो कस्टमर जो है उसको लिंक को क्लिक करके अपना कंट्री खुद सिलेक्ट करेगा। अक्सर ये क्वेश्चन सुनने में मिलता है कि लिंक जनरेट करते हुए हम अगले बंदे का कंट्री जो है वो खुद सेलेक्ट करें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर जर्मनी में करना है या इटली में करना है या यूएसए में करना है या यूके में करना है, तो हम किस तरह से उसका कंट्री सेलेक्ट करें। आप कंट्री सेलेक्ट करोगे भी, यूएसए यूके आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो लिंक जनरेट करते हुए, डजंट मैटर एट ऑल। आप चाहे अपना लिंक जनरेट करते हुए जो कंट्री है वो यूएई ही रखो, जो आपका होम कंट्री है। आप पता है मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, यूएई है, कतर है, ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं ये आपके होम कंट्री की ही कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो इन कंट्रीज को ही आप यहाँ, मतलब आप फॉर एग्जांपल हम यूएई ही मेनली लेते हैं, बिकॉज हमारी प्रोडक्ट जो है वो मेनली यूएई से आ रही होती है पाकिस्तान में, या कतर से आ रही होती है। तो यूएई फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया है और आपने शॉप लिंक बना दी है अपने कस्टमर के लिए जो कि यूएसए में बेस्ड है। अब आप उसको लिंक सेंड करने के बाद खुद गाइड करोगे कि इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है यूएसए। वहां पे पहले रीजन वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए सेलेक्ट कर भी लेते हो वाइल सेटिंग द लिंक या क्रिएटिंग द लिंक आप कह लो, तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है वो उसके पास कुछ और ही खुले, अगर आप यूके वाले किसी कस्टमर को भेजो हो सकता है उसके पास यूएस से ही खुले, तो इट डजेंट मैटर। आपने उसको खुद पर्सनली गाइड करना है कि ये लिंक को क्लिक करने के बाद आपने दो चीजें मेक श्योर करनी है। एक तो आपने मेक श्योर करना है कि मेरा नाम सामने पॉपअप हो रहा हो। लाइक जो भी आप में से कोई भी बंदा जो भी अपने कस्टमर को लिंक शेयर कर रहा है या अपने प्रोस्पेक्ट को लिंक शेयर कर रहा है ज्वाइन होने के लिए, तो अपने प्रोस्पेक्ट को या कस्टमर को ये बता दो कि मेक श्योर कर ले कि सामने आपका नेम पॉपअप हो रहा हो तभी प्रोसीड करे, वरना ना करे। वरना ये करे कि उस लिंक को बंद कर दे और उस विंडो को बंद कर दे और दोबारा से लिंक को क्लिक कर। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कुछ पेड कुछ स्पॉन्सर्ड इस तरह के वो चल रहे होते हैं वहां पे आईडीज, जो कि अगर आप लिंक को क्लिक करते हो तो वो खुल जाते हैं रैंडमली, किसी और का नाम खुल जाता है। तो एक दफा आपने कस्टमर को ये प्रोस्पेक्ट को जरूर बताना है कि प्रोसीड करने से पहले मेक श्योर कर ले कि आप ही का नाम पॉपअप हो रहा हो, लाइक जो स्पॉन्सर है या जो रिटेलर है उसका ही नाम मेंशन हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हिना ने अगर किसी को कोई लिंक भेजा है, तो वो अपने कस्टमर को कहेगी कि मेक श्योर कर लें कि हिना सामने लिखा हुआ आ रहा हो। ठीक है, इसी तरह से रिक्रूट करते हुए भी हिना का नाम जो है वो सामने फॉर एग्जांपल नजर आना चाहिए, तो फिर वो प्रोसीड करें। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि अब जैसे आप किसी भी ऐसे कंट्री में रिटेल कर रहे हो जहां पर ऑलरेडी हेड ऑफिस है और प्रोडक्ट सेंटर खुद डायरेक्टली जो है वो आपके कस्टमर तक फुल प्राइस पर प्रोडक्ट जो है वो पहुंचा रहा है। ठीक है, तो यू बीइंग ऑन 30% डिस्काउंट, बीइंग ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, आप 30% डिस्काउंट पर हो और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फुल प्राइस पर कस्टमर को जा रहे हैं, लाइक वो फुल प्राइस पर सेल परचेज कर रहे हैं आपसे। तो ये जो 30% का बीच का डिफरेंस है ये आपके पेचेक के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक हो गई बात। तो ये 30% आपके उसके अंदर ऐड हो जाएगा अगर आपने फुल प्राइस पे दिया। और अगर फॉर एग्जांपल आपने लिंक को जनरेट करते हुए, अपने शॉप लिंक को जनरेट करते हुए 5% या 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो फिर जो बीच का डिफरेंस है वो 25 या 20 रह जाएगा। ठीक है, अगर आपने 5% डिस्काउंट दिया है तो 20% रह जाएगा, 25%। और अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया है तो आपका और उसका जो डिफरेंस है वो 20% रह जाएगा। तो ये चीज जो है वो आपके पेचेक में बन के आएगी। लाइक अगर आप डिस्काउंट दे दोगे तो ऑब्वियसली आपका जो रिटेल प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये कि अगर फॉर एग्जांपल आप मिडल ईस्ट के ही किसी कंट्री के अंदर रिटेल कर रहे हो, तो वो वाले जो पेचेक होगा वो आपके जो आप लाइक फॉर एग्जांपल होम कंट्री है, जो आपका मेन हेड ऑफिस है, यूएई का समझ लें या कतर का समझ लें, वहां से आपका पेचेक इकट्ठा होके बनेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चीज सेल की यूएई में, एक आपने चीज सेल की कतर में, एक आपने चीज चीज सेल की बहरेन में, या एक आपने टीम मेंबर बनाया कुवैत में, एक आपने टीम मेंबर बनाया ओमान में, इन सारों का जो लाइक मिडिल ईस्ट की जितने भी कंट्रीज हैं उनमें आपने जितना भी बिजनेस किया है उन सब का जो पे चेक जनरेट होगा वो आपको आपके एक ही किसी एक हेड ऑफिस से जहां से भी आप ऑपरेट करते हो, जहां पे भी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर कतर में रजिस्टर्ड है तो आपको कतर के हेड ऑफिस से वो सारे का सारा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक हो गई बात। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप
मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप बिजनेस करते हो यूके या यूएसए में, आपका कोई कस्टमर या आपका कोई जो टीम मेंबर है न्यू ज्वाइनी, वो किसी दूसरे कंट्री में है, लाइक यूएसए में है, यूके में, किसी और रीजन में है, तो फिर जो है आपको वहां से सेपरेटली पे चेक आएगा। वो आपके होम कंट्री वाले हेड ऑफिस से नहीं मिलेगा, वो आपके पास डॉलर्स में या उनकी करेंसी में या यूरोज में या इस तरह से करके अमाउंट आती है। और वो किस तरह से आती है, बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको पता है कि पूरे महीने में आपने जितना भी बिजनेस किया हुआ होता है, नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में, लाइक फर्स्ट वीक में, प्रोबेबली मोस्टली जो है वो आ जाता है, आपका पेचेक आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो हो जाता है। कहाँ पे शो होता है मैं दिखाती हूँ, लेकिन वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ जाता है, और आप जो है वो उस मंथ की 15th को जो है वो विड्रॉल करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर में आपने जितना भी बिजनेस किया हुआ है, अक्टूबर के 5th को जाके या 5th 6th 7th को जाके आपकी प्रोफाइल के ऊपर वो पेचेक जो है, आपकी अर्निंग जो है उस मंथ की, वो नजर आना शुरू हो जाएगी। और 15th को जाके आप किसी भी मतलब अपने जो मेन आपका जो कंट्री है जहां पर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, वहां के हेड ऑफिस से जाके आप विड्रॉल करवा सकते हो मनी। ठीक है। सिमिलरली जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी जो आपके पेचेक्स रिलीज करते हैं वो 15th को ही करते हैं, लेकिन उनके रिलीज करने का तरीका डिफरेंट है। वो जब आपका पेचेक बन जाता है तो वो आपको एक ईमेल आ जाती है कंपनी की तरफ से, कंपनी की एक और ईमेल एड्रेस है, लाइक ग्लोबल पे के अकाउंट से। बेसिकली ये एक फॉरएवर का अपना बैंकिंग सिस्टम है, समझ लो। वो एक उस वहां पर आपकी इनकम आ जाती है। आप वहां पर पहले तो अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते हो, आपको जब ईमेल आती है तो वहीं पर ऑप्शन होती है अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने की और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दोबारा सेट करने की। आप चाहो तो अपना ही जो आपका मेन एफपीओ आईडी और पासवर्ड है, आप उसी से दोबारा उसको सेट कर लो। जब आप उसको सेट कर लेते हो तो वहां पर आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं। एक तो होती है क्लेम योर कार्ड, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन होती है फंड ट्रांसफर। ये दो ऑप्शंस होती हैं, आप चाहो तो आप दोनों चीजें कर लो। लाइक आप अपना कार्ड भी मंगवा लो अपने पास, ये एटीएम के कार्ड की तरह का होता है जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होता है, और इसके अंदर जितनी भी आपकी पेमेंट्स आती रहती हैं, वो आप जो है वो यूज कर सकते हो किसी भी जगह पर, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप उसको विड्रॉल भी करवा सकते हो और उसको स्वाइप करके भी यूज कर सकते हो। लेकिन दूसरी ऑप्शन है, वो है कि आप अगर फॉर एग्जांपल कार्ड नहीं भी लेते तो कोई मसला नहीं है, कार्ड लेना इतना जरूरी भी नहीं है, आप डायरेक्टली फंड ट्रांसफर करवा लो, अपना अकाउंट नंबर दे दो और उस अकाउंट में आप अपनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करवा लो। ठीक है। तो आपकी जो दूसरे कंट्रीज की जो पे चेक्स होते हैं वो इस तरीके से आ जाते हैं। कहीं आपको खुद भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस इसलिए रखना पड़ता है कि जैसे कुछ कंट्रीज हैं वो खुद ही ग्लोबल पे कार्ड में आपका जो है वो ग्लोबल पे जो आपका अकाउंट होता है उसमें पैसे डाल देते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर आपको खुद नोटिस करके देख के कि मेरे इस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पिछले दिनों फ्रांस की कुछ पेमेंट्स इकट्ठी हुई हुई थी पिछले 6 महीने की, और मुझे पता ही नहीं था। और मैंने जाके जब देखा तो वो तकरीबन मेरा 2-2.5 लाख रुपया बनता था पाकिस्तानी रुपीज में, जब मैंने कन्वर्ट किया तो वो यूरोज में इतनी अमाउंट बनती थी वहां पे। तो ऐसे मेरी नज़र से गुजरा और मुझे पता चला, क्योंकि आप डिफरेंट कंट्री को सिलेक्ट करके जो है ना वो करते हो, अपना अपनी अर्निंग चेक करते हो। ठीक है। तो वो जब जाके मैंने चेक किया, और फिर मैंने वहां पर जो उनके, हमारे पास इंटरनेशनल डायरेक्टरी तो है ही ना, वहां से मैंने ईमेल एड्रेस उनका लिया और मैंने उनको ईमेल की कि ये मेरे पेचेक्स बनते हैं, और आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप सिर्फ उनको ये बता दो कि ये मेरा एफपीओ आईडी है और मेरे कुछ पेचेक्स बनते हैं, तो आपको एग्जैक्टली वो खुद ही कैलकुलेट करके आपसे अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं कि किस अकाउंट में आपने ट्रांसफर करवाना है, और वो फिर उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है उनका। यूके में भी इस तरह से ही होता है, और फ्रांस का भी मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का ही रहा है, स्पेन साइड का। तो बाकी जो यूएसए कनाडा साइड के, ऑस्ट्रेलिया साइड के जो हैं वो तो ऑलरेडी ग्लोबल पे में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट कंट्रीज का जो है वो सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी आप बिजनेस करोगे वो आपको अपने हेड ऑफिस से आप कैश विड्रॉल करवा सकते हो जाके। ठीक है। और वहां पे भी आप चाहो तो अपने अकाउंट में डायरेक्टली भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन उसमें काफी डिडक्शंस हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं उसको प्रेफर नहीं करती। मेरा लास्ट टाइम जो एक बैंक में आया था, कोई पता नहीं 11,000 का पेचेक था या क्या, 11,000 दिरहम्स का, रियाल्स का। तो उसके अंदर से कोई 700-800 जो थे ना रियाल्स, वो डिडक्ट हुए हुए थे।
तो लाइक मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह से बैंक ट्रांसफर में डिडक्शंस भी होती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने उसको ऑप्शन को कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा था कि आइंदा मेरे जो पे चेक्स हैं वो बैंक अकाउंट में ना आया करें, मैं खुद जाके पिकअप कर लिया करूंगी, और फिर जब खुद जाके मैं कलेक्ट करती हूँ तो वो आपको पूरे के पूरे मिल जाते हैं, फिर कोई किसी किस्म की डिडक्शंस नहीं होती। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हम अपनी अर्निंग्स कहाँ पर चेक करते हैं। आप जाते हो रिपोर्ट्स में, ये सामने आपको रिपोर्ट्स नजर आ रही थी, रिपोर्ट्स पर आपने क्लिक किया और आपने जाके माय अर्न, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी आपके ग्लोबल ऑर्डर्स। इसको आप अगर एक एक चीज को खोल के चेक करो ना, आपको आइडिया हो जाएगा। खुद चीजों को एक्सप्लोर करोगे तो भी समझ में आ जाएगी। ये माय वॉल्यूम में जाके आपको अपने सीसीज पूरे मंथ के या पिछले पूरे साल के इवन कितने हुए हैं वो सब नजर आ जाएंगे। ये सब चीजें आपने खुद अभी साथ साथ ही या बेशक बाद में अपनी वेबसाइट को खोल के देखना है, एक दफा सारों ने एक्सप्लोर करना है। चाहे आपको बिजनेस को स्टार्ट कर किए हुए कुछ टाइम हो भी गया और आप ऑलरेडी अपनी वेबसाइट को खोलते रहते हो, लेकिन स्टिल अगर आपने अभी तक सारे बटन्स को प्रेस करके नहीं देखा हुआ ना, तो प्लीज एक दफा दोबारा जाएं, अपने अकाउंट को लॉग इन करें और इन सारी ऑप्शंस को खोल के देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक वेबसाइट मिली हुई है ना आपको पूरी, आपके नाम का एक पोर्टल है, तो आपने उसको जाके जरूर खोल के देखना है कि वहां पर आपको क्या क्या मिलता है। अब ये देखिए, ये माई अर्निंग है। यहाँ पर जाकर आप जो है वो चेक करते हो कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ की या कुछ इस तरीके से करके वो आपको नजर आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर अ, इस जगह पे करके ये ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसमें जर्मनी, फ्रांस। अब चलो लेट्स सी, जर्मनी देखते हैं कि जर्मनी में क्या कोई हुई भी है कि नहीं हुई भी इनकम। तो बेसिकली आप जो कंट्री सिलेक्ट करोगे ना, आपको वो ही उसी की ही नजर आएंगी। अगर आप अदरवाइज कोई और जनरली कोई उसमें रहता है, ये नॉर्मल जनरल ही खोल दिया था, बट ये है कि अगर आप किसी भी, अगर आपने फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट के अलावा किसी और कंट्री के अंदर, अच्छा डाटा इज नॉट अवेलेबल क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई बिजनेस नहीं किया। अच्छा ये है, अब देखें ऑस्ट्रेलिया का भी एक निकल ही आया, और विच इज टोटल अर्निंग्स 10 और कैरी फॉरवर्ड 134। तो अब ये देखिए, ये मुझे पता ही नहीं था कि ये ऑस्ट्रेलिया में मेरे $134 जो है ये 145 हो गए नेट बोनस पेमेंट। तो खैर बहरहाल, इस तरीके से करके आप जो कंट्री सिलेक्ट करते हो उस कंट्री के ही आपको सीरीज भी नजर आते हैं, और उसी कंट्री के ही आपको जब आप माई वॉल्यूम में जाके चेक करते हो ना, वहां पे भी इस तरह से कंट्री सिलेक्ट करने की ऑप्शन होती है। तो वहां पे भी जब आप जो कंट्री सेलेक्ट करोगे उसी के ही सीसीज या उसी का ही वॉल्यूम आपको नजर आएगा। इसी तरह से जब आप माई अर्निंग्स को चेक करने जाते हो तो भी आप यहाँ से कंट्री जो भी सिलेक्ट करोगे आपको उसी के ही पे चेक्स नजर आएंगे। तो अगर आपको पता है फॉर एग्जांपल कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक सेल की हुई है, मैंने कनाडा में एक रिक्रूट किया हुआ है या जो भी है, तो आप उस पर्टिकुलर को जाके एक दफा जरूर चेक कर लोगे कि मेरी फलां जगह की अर्निंग क्या थी, क्या रही है। थोड़ा सा ये बेसिकली इसका वो चेंज हुआ है वेबसाइट। पहले तो एक ही जगह पर सारी करेंसीज की जो इनकम थी वो नजर आ जाती थी, लेकिन अब इन्होंने इस तरह से कर दिया हुआ है कि आप खुद कंट्री सिलेक्ट करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की जो वो है वो नजर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया माय अर्निंग। उसके अलावा आप यहाँ पे देखो, एक एक चीज को एक्सप्लोर करके देखो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ने किसी को रिक्रूट किया है और उसकी आपको ईमेल नहीं आई हुई, ना ही आपके डाउनलाइन को आई हुई है उसकी ईमेल, आपको उसका एफबीओ आईडी नहीं पता चल रहा, तो आप कहाँ जाओगे? पर्सनली स्पॉन्सर्ड में। ये वाली जब आप रिपोर्ट को रन करोगे तो आपको उस आपके न्यू टीम मेंबर का एफबीओ आईडी और सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका ग्लोबल वॉल्यूम मींस कि पूरी दुनिया में आपने कितने सीसीज किए हैं वो आपको यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो है वो नजर आ जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं अपने बिजनेस का एक ट्रैक रखने के लिए कि किस तरफ जो है वो मेरा जा रहा है। और डेली बेसिस के ऊपर खोल के एक दफा, चाहे आप कुछ बिजनेस करें या नहीं करें, एक दफा इसको जरूर खोल के देखिए, आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर फॉर एग्जांपल सीसी जीरो पे है तो ये क्यों जीरो पे है, आप इसको बढ़ाने की जरूर कोशिश करते हो। अगर एक है तो आप उसको दो करने की कोशिश करोगे, दो है तो तीन करने की कोशिश करोगे, इस ट्रेंड को जो है ना ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करोगे। उसके अलावा यहाँ पर टूल्स में अगर आप जाओ, टूल्स में आपको बहुत सारे कैटलॉग्स मिल जाते हैं। जिस तरह अक्सर आप लोग मांग रहे होते हो कि हु डू यू नो लिस्ट की वर्कशीट वो किधर है, एफएसटीएम किधर है,
और फलां कैटलॉग किधर है, फलां कैटलॉग किधर है, तो आपको बहुत सारी कैटलॉग जो है वो यहाँ से मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर को खोलती हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे कितनी सारी वर्कशीट्स मिल गई हैं। ठीक है, डिफरेंट मार्केटिंग प्लान के जो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो किस तरह से आपने उसको प्लान करना है वो यहाँ पे मुझे मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपको बहुत सारा डाटा आपकी अपनी वेबसाइट से ही मिल जाता है, आपने सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर आप ट्रेनिंग वाले सेक्शन में जाओ, आई एम श्योर कि बहुत ही कम लोगों ने जाके देखा होगा। यहाँ पर कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको, अगर आप उसको एग्जैक्टली वो नहीं भी करना चाहते फॉलो या कॉपी, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे नए आइडियाज जो है वो यहाँ से मिल सकते हैं, जिसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करके अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जब बात आती है लिंक बिल्डिंग की, शॉप लिंक किस तरह से आपने अपना बनाना है, तो शॉप लिंक जो है वो आपका डैशबोर्ड में जाके, यहाँ पर आप डैशबोर्ड में गए, आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ था, और अकाउंट लॉगिन करके आप डैशबोर्ड में गए हो, यहाँ पे ये लिंक बिल्डर के नाम से एक ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ये लिंक बिल्डर जो है इसको आप क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप अपना लिंक बना सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू लिंक, यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज करोगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने विद डिस्काउंट देना है तो भी, अगर आपने विदाउट डिस्काउंट देना है तो भी, आप उस तरीके से करके लिंक क्रिएट करो। और फिर आपने अपनी टाइप सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कस्टमर को देना है तो आप ज्वाइन नाउ पेज पे जाओगे, अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देनी है तो आप उस प्रोडक्ट के पेज पे चले जाओगे, यहाँ से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप ओवरऑल जो रिटेल होम पेज है, जहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज नजर आ रही होती हैं प्रोडक्ट्स की, वो वाली, लाइक आपका कोई कस्टमर है उसको देना चाहते हो, तो आप ये करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर आपको कंट्री चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी उनको खुद ही करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोस्पेक्ट के लिए ज्वाइन नाउ पेज का लिंक बनाना है, तो आपने बस ये सिलेक्ट करके और इसको कंटिन्यू कर देना है, और वो आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, और उसके बाद जो है उसने एक लिंक आपको बना के दे दिया। इसको आप कॉपी करें, और कॉपी करके जो है वो अपने प्रोस्पेक्ट भेजें जिसने आपके साथ रजिस्टर्ड होके बिजनेस को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब इसी लिंक को जब आप खुद क्लिक करके खोलने की कोशिश करते हो तो आपको स्टार्टर पैक नजर नहीं आता। उसका रीजन ये है कि आप अपने अकाउंट से ऑलरेडी लॉग इन होते हो। तो इस वजह से आपको अक्सर ये भी एक क्वेश्चन आता है बड़ा फ्रीक्वेंट, कि जब मैं अपने शॉप लिंक पे जाके देखा मैंने, तो मुझे वहां पर स्टार्टर पैक नजर नहीं आया। वो इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि आप ऑलरेडी अपने अकाउंट पे लॉग इन थे। अगर आप अपने अकाउंट पर लॉग इन नहीं होगे, या फिर आप पहले लॉग आउट कर लो और फिर उस लिंक को क्लिक करो जो कि आपने व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी सेव कर लिया हुआ है, सेंड किया हुआ है। आप पहले अपने अकाउंट को लॉग इन करो, फिर उसको क्लिक करोगे, तो फिर आपको वो एज अ प्रोस्पेक्ट ही लेगा जो वेबसाइट है, और फिर जो है वो आपको स्टार्टर पैक सामने नजर आ जाएगा और आप उसकी प्राइस चेक कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी दूसरे कंट्री के अंदर, जहां पर आप किसी को रिक्रूट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे वहां के स्टार्टर पैक की प्राइस पता चल जाए, तो बहुत ही सिंपल सा वे है गाइस। ये क्वेश्चंस बार बार मत पूछा करें कि प्राइसेस कैसे जो है वो पता चलेंगी, फलां कंट्री की कैसे पता चलेंगी, फलां कंट्री की कैसे पता चलेंगी। किसी भी कंट्री की प्राइस को चेक करने के लिए आपने सिंपली यहाँ से जाके, इसको मैं बंद करती हूँ, सिंपली यहाँ से जाके आपने जो है ना रीजन चेंज करके और कंट्री चेंज कर लेना है। किसी भी कंट्री को जब आप चेंज कर लोगे, तो लाइक फॉर एग्जांपल जिस भी कंट्री में आपने चेक करनी है प्राइसेस, वो आप कंट्री सेलेक्ट करोगे तो आपको उसकी करेंसी में जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाएंगी प्राइसेस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज थी वो थी आपका प्राइसेस, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस। अब आप शॉप में जाते हो, अब जैसे मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे वो जो प्राइसेस दिखाएगा वो दिखाएगा मेरी परसेंटेज के ऊपर, 48% के ऊपर। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को मतलब यहाँ से लॉग आउट कर दो, जब मैं लॉग आउट करूंगी तो फिर जो मुझे प्राइसेस शॉप पर जाने से दिखाएगा वो कौन सी होंगी, वो कस्टमर की प्राइसेस होंगी। तो जब आप ये पूछते हैं कि कस्टमर को कौन सी प्राइस बतानी है और मुझे ये कितने में पड़ेगा, तो ये इसका जवाब बहुत ही आसान है कि जब आप अपने अकाउंट से लॉग आउट कर देते हो, आप सिंपली वेबसाइट पर जाके शॉप में जाके प्रोडक्ट्स देखते हो। ये लेफ्ट साइड पर आपको सब कैटेगरीज नजर आ रही हैं, इन सब कैटेगरीज को बारी बारी खोल के चेक करें कि किस कैटेगरी के अंदर क्या चीज है। जैसे ड्रिंक्स में क्या क्या है, जैसे कि न्यूट्रिशनल में क्या क्या है,
अब जैसे ये ड्रिंक्स में आपको ये नजर आ गया, ठीक है, ये सब चीजें ड्रिंक्स में आ गई हैं। इसी तरह से आप ये सारी कैटेगरीज खोल के देखो, बी प्रोडक्ट में कौन 3 सप्लीमेंट्स है, एक हनी है, उसके अलावा पर्सनल केयर में आपका शैम्पू, कंडीशनर, टूथ जेल और एलोलिप्स और इस तरह की सब चीजें होंगी, सोप्स वगैरह होंगे। स्किन केयर में स्किन केयर की सारी प्रोडक्ट्स होंगी, न्यूट्रिशन में सारे सप्लीमेंट्स होंगे, वेट मैनेजमेंट की चीजें वेट मैनेजमेंट में होंगी और उसके अलावा भी होंगी, लाइक उसका मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कि वेट मैनेजमेंट की चीजें आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कैटेगरी से मिलेंगी। लेकिन कॉम्बो पैक्स में आपको स्टार्टर पैक्स और जो है वो ऑब्वियसली स्टार्टर पैक्स आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करके तो नजर नहीं आएंगे, लॉग आउट करके नजर आएंगे। लेकिन कॉम्बो पैक्स में उसके अलावा जो है वो C9 और F15 आता है। तो ये सब चीजें जो है आपको कैटेगरीज को एक्सप्लोर करने से आती हैं। आपको ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। इनको आप बार बार खोल खोल के चेक करते रहोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स के नेम्स और उनकी शक्लें, और अगर फॉर एग्जांपल सारी चीजें आपके हाथ में नहीं भी आई, आपके प्रोडक्ट जो आपका स्टार्टर पैक था उसके थ्रू, तो भी आपको एटलीस्ट सब चीजों का आइडिया होगा होगा कि कौन सी चीज जो है वो किस तरीके से करके है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइस मुझे मेरी परसेंटेज पे दिखा रहा है, तो इसको मैं पाकिस्तानी रुपीस में किस तरह से कन्वर्ट करूंगी। ये वाली जो प्राइस है नीचे जो कट हुई हुई है, ये प्राइस है कस्टमर वाली प्राइस, 104.46 AED है प्राइस एलोवेरा जेल की कस्टमर के लिए फुल प्राइस। ठीक है, इसको आपने अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना है तो आप इसको जो करंट रेट चल रहा होगा, कन्वर्जन रेट जो चल रहा होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और आपको पाकिस्तानी रुपीस में प्राइस पता चल जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, लेकिन एक चीज जो इसके अंदर ऐड होगी वो होगी शिपिंग कॉस्ट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान पर्टिकुलरली। अब देखिए, दूसरे किसी भी कंट्री में आप प्राइसेस जो भी चेक कर रहे हो वो तो आपकी जाएंगी एज इट इज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूके में कोई चीज भिजवानी है तो उसके ऊपर तो कोई शिपिंग कॉस्ट उस तरह की ऐड नहीं होगी एक्स्ट्रा पर केजी के हिसाब से। वो जो लोकल डिलीवरी चार्जेस लेते हैं वो खुद ही वेबसाइट पर ही मेंशन कर देते हैं। जैसे हर ऑर्डर के पीछे, वो डजेंट मैटर कि ऑर्डर कितना बड़ा है या कितना छोटा है, आई थिंक वो लोग हर ऑर्डर के पीछे 7 पाउंड लेते हैं डिलीवरी चार्जेस। लेकिन ये जो शिपिंग कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ वो मिडल ईस्ट से, मतलब यूएई से या कतर से चीजें जब पाकिस्तान जाती हैं तो उन उन पर्टिकुलर जो लाइक वो जो प्राइस ऐड होती है वो होती है शिपिंग कॉस्ट, जो हम कार्गो वालों को पे करते हैं 10 दिरहम्स पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो वो जो 10 दिरहम्स पर केजी है उसके ऊपर हम ऑब्वियसली पहले ये देखेंगे कि जो चीज हम भिजवा रहे हैं या जो हम कस्टमर को देना चाह रहे हैं वो कितनी हैवी है, क्योंकि हमने पर केजी के हिसाब से पे करना है। तो जो अगर फॉर एग्जांपल किसी ऐसे कंट्री में आप सेल कर रहे हो जहां पर हेड ऑफिस है ऑलरेडी, जहां पर आप शॉपिंग के थ्रू रिटेल कर रहे हो, वहां पर तो आपको शिपिंग कॉस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर लाइक पाकिस्तान में जिस तरह से हेड ऑफिस नहीं है और हम खुद ये सिस्टम चलाते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से प्रोडक्ट्स परचेज करके मैंने पाकिस्तान में इन्वेंट्री रखी हुई है ताकि मेरे कस्टमर्स को, मेरे न्यू टीम मेंबर्स को और मेरे न्यू टीम मेंबर्स के, इवन पुराने सब टीम मेंबर्स को के जो कस्टमर्स हैं उनको वेट ना करना पड़े, तो इस वजह से वो इन्वेंट्री सिस्टम मैंने रखा हुआ है और जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उसमें हेल्प आउट करने की कोशिश करती हूँ। ऑब्वियसली पूरी की पूरी रेंज तो रखना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अक्सर चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी सेल होने वाली है। जैसे वेट लॉस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब बहुत जल्दी जल्दी सेल होने वाली हैं, वो मैंने ज्यादा क्वांटिटी में रखी होती है। लेकिन बाकी जो चीजें जैसे स्किन केयर, ये सप्लीमेंट्स, वो मैंने थोड़े थोड़े रखे होते हैं, वो फिर सारी की सारी चीजें नहीं होती। तो उसमें थोड़ा सा आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपकी ये चीज की बहुत अच्छी रिटेल है तो आप जो है वो उसको पहले से ही अपनी इन्वेंट्री में परचेज करके रखो। एवरी मंथ दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि आप एवरी मंथ अपने पास कुछ सीसीज की, 2 सीसी, 3 सीसी, 4 सीसी, 1 सीसी, जितने भी आपको लगता है कि मेरी इस मंथ में रिटेल हो जाएगी इजीली, आप उतने इन्वेंट्री जो है वो अपने पास परचेज करके पहले से ही रख लो। लाइक मंथ स्टार्ट हो और आप अपने ऑर्डर प्लेस करके रख लो, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट्स को यहाँ से पाकिस्तान पहुंचने में कम से कम भी 4 से 5 हफ्ते या 6 हफ्ते लग जाते हैं कार्गो के थ्रू। तो इस वजह से उस डिले को जो है वो अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करो कि मंथ के स्टार्ट में ही अपनी एक इन्वेंट्री जो है वो अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स की, जो आपको हो सकता है कि मैं जिसमें अकोमोडेट ना कर पाऊँ, वो आप परचेज करके अपने पास रख लो। और उसके अलावा जिस तरह जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है जैसे एलोवेरा जेल्स हैं या टीज हैं या इस किस्म की चीजें जो मेरे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री में काफी सारी पड़ी हुई होती हैं, वो तो डेफिनेटली आई विल अकोमोडेट यू। अगर बाकी चीजें भी कुछ पड़ी होंगी तो डेफिनेटली आई विल अकोमोडेट। लेकिन ये मैं उस केस की बात कर रही हूँ कि हर चीज नहीं भी होती मेरे पास, और अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरी अच्छी निकलेगी तो आप उसको पहले से ही परचेज करके अपने पास रख लो ताकि आपके कस्टमर को वेट ना करना पड़े। ठीक है,
खैर ये आपके बिजनेस को बूम करने के लिए जो है ना वो आपकी बहुत मदद करेगा अगर आप इस चीज को समझ पा तो। सो बेसिकली आप सिर्फ पाकिस्तान वाले जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आप 10 दिरहम्स पर केजी के हिसाब से ऐड करके बताते हो। अब जैसे एक एलोवेरा जेल जो है वो 1 केजी की है, 1 लीटर की है, तो उसके ऊपर 104 के 0.46 में 10 दिरहम्स ऐड होंगे और ये 114.46 हो जाएगा। अब ये इसकी प्राइस आ गई दिरहम्स में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन रेट के साथ, जो एक 1 AED इक्वल्स टू हाउ मेनी PKR, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पाकिस्तानी रुपीस में उसकी प्राइस पता चल जाएगी। यूजुअली ये होता है कि जो गूगल के ऊपर रेट चल रहा होता है, इसका पाकिस्तानी जो कन्वर्जन रेट होता है उससे 2.5 रुपीज ऊपर रख के हम मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज जब बैंक के थ्रू हम ऑर्डर प्लेस करते हैं ना तो वो चार्जेस डिफरेंट होते हैं, बिकॉज उसके अंदर टैक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। और इवन गूगल से भी बेहतरीन तरीका ये है कि आप फॉरेक्स पे जाके जो है वो रेट्स चेक करें, उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों होता है। तो आपने सेलिंग वाला रेट देखना है, बिकॉज सेलिंग का मतलब है कि वो लोग आपको ओपन मार्केट में वो लोग आपको सेल करें, और हमने बेसिकली दिरहम को परचेज करना है ना इनडायरेक्टली टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स। आप काइंड ऑफ परचेज कर रहे हो तो आपको वो वाला रेट देखना है। तो आप सेलिंग वाला रेट देखोगे जाके फॉरेक्स पे, तो वो आपको तकरीबन आप कहो कि काफी एक्यूरेट रेट पता चल जाता है जो भी करंटली गूगल मतलब करंटली चल रहा होता है ओपन मार्केट में। गूगल वाले रेट जो है ना वो थोड़े अक्सर ही ऊपर नीचे होते हैं। तो मेक श्योर करें कि फॉरेक्स पे जाके रेट्स चेक करें और फिर उनके साथ जो है या उनसे 2.5 रुपया ऊपर रख के जो है वो मल्टीप्लाई करें आप इन AED वाले रेट्स को, इन प्राइसेस को, इसमें कि जो है शिपिंग कॉस्ट ऐड करके। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हैवी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे RG का पाउच आपको नजर आ रहा है, ये हैवी नहीं होता। लाइक ये हार्डली शायद कोई 200 300 400 ग्राम का होगा, ये मतलब बहुत ही लाइट वेट है। ये एलो ब्लॉसम टी बहुत लाइट वेट सी है, तो इसके अंदर तो हम ऑब्वियसली 10 दिरहम्स ऐड नहीं करेंगे इसके प्राइस में, क्योंकि उसका वेट ही इतना नहीं है। और जो कार्गो चार्जेस है वो तो हमने पर केजी के हिसाब से ऐड करने हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो शिपिंग कॉस्ट ऐड करेंगे वो पर केजी के हिसाब से ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेट। अब जैसे एक C9 है वो 4 केजी का होता है, तो उसके ऊपर हम 40 दिरहम्स ऐड करेंगे उसकी प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए, लाइक शिपिंग कॉस्ट ऐड करके, और फिर उसको कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई करके हम पाकिस्तानी रुपीस में उसकी प्राइस चेक कर लेंगे। अच्छा, अब जो लोग तो हैं दूसरे कंट्रीज में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई कनाडा में है टीम मेंबर, यहाँ पर कोई जर्मनी में है, कोई आयरलैंड में है, कोई डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है, और वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, या कोई मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में है और वो पाकिस्तान में अपनी रिटेल या रिक्रूट करना चाहते हैं, तो क्या तरीका होगा? तरीका ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज सेल करनी है, आपका कोई कस्टमर है और आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इन्वेंट्री पाकिस्तान में रखी हुई है, तो आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये चीजें अवेलेबल हैं। तो अगर मेरी इन्वेंट्री में वो चीजें अवेलेबल होंगी, मैं आपको ग्रीन सिग्नल दे दूंगी, तो आप अपने कस्टमर के साथ कमिट कर लोगे, और उसके बाद जो है वो आपकी कस्टमर को प्रोडक्ट मैं डिलीवर करवाऊंगी अपने सिस्टम के थ्रू, लाइक अपनी इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब वो चीज उसको फौरन मिल जाएगी आपके कस्टमर को, लाइक 2 to 3 4 डेज के अंदर जो है वो उसको प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन अब आपको उस प्रोडक्ट की CCs भी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली CCs मैटर करते हैं। तो आप इसी चीज के लिए तो बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस ही बेसिकली वॉल्यूम आपका जो है वो जनरेट तभी होगा ना जब आपके CCs आपके अकाउंट से जो है वो अपडेट होंगे। तो अब होगा क्या कि आपने मुझे बताया और मैंने आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर को सेंड कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि उसको जल्दी मिल जाए, वरना वही सेम प्रोडक्ट या उतने ही CC या उतनी ही वर्थ की कोई प्रोडक्ट मैं आपके अकाउंट से लॉग इन करके परचेज करके यहाँ कतर से पाकिस्तान भिजवाऊंगी, ताकि आपके CCs अपडेट हो जाए मिडिल ईस्ट में। फिर आपकी अगर फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे भी कंट्री में रहते हो तब भी आपके CCs जो है वो मिडिल ईस्ट में ही अपडेट होंगे, क्योंकि फिर ऑब्वियसली मेरी इन्वेंट्री भी तो रिफिल होनी है ना, और आपने बिजनेस ही इस एरिया में किया है। तो आप पाकिस्तान को बेसिकली आप मिडिल ईस्ट के ही अंडर कंसिडर करो, बिकॉज हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अपना होम कंट्री कंसिडर करके पाकिस्तान में बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो इस वजह से आपके CCs अपडेट होंगे मिडिल ईस्ट के कंट्री में, ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट जो है वो वाली वो मेरी इन्वेंट्री के अंदर रिफिल हो जाएगी, लेकिन आपके कस्टमर को या आपके टीम मेंबर को जो स्टार्टर पैक पहुंचना था वो टाइमली मिल जाएगा। उसको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, लाइक 4 to 6 वीक्स जो है वो वेट नहीं करना पड़ेगा, हार्डली 4 to 6 डेज वेट करना पड़ेगा शायद।
तो ये एक तरीका है पाकिस्तान में बिजनेस करने का। और जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं ऑब्वियसली वो दूसरे कंट्रीज में किस तरह से बिजनेस बिल्ड करते हैं, अपने शॉप लिंक के थ्रू, जो आप अपने कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट्स को देते हो, जिसका तरीका मैंने अभी आपको सिखाया है। और पाकिस्तान में किस तरह से बिजनेस करना है, जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो टीम मेंबर्स पाकिस्तान में हैं या जो टीम मेंबर्स पाकिस्तान में नहीं भी हैं, अगर आपने पाकिस्तान में किसी को कोई चीज डिलीवर करवानी है, चाहे वो आपके न्यू स्टार्टर का स्टार्टर पैक है या फिर आपकी किसी भी कस्टमर का प्रोडक्ट है, तो आप वो चीज मुझे बताओगे कि इस एड्रेस के ऊपर ये चीज सेंड करनी है, इस अमाउंट में सेंड करनी है। वो चीज मैं उसको सेंड करूंगी और फिर आपके अकाउंट से लॉगिन करके वो चीज परचेज कर लूंगी। तो जो आपका प्रॉफिट होगा बीच का, अगर आप फुल प्राइस पर सेल कर रहे हो, तो आपका जो 30% का या जितनी भी जिस भी परसेंटेज पे आप हो, जो आपका परसेंटेज का प्रॉफिट है वो आपको मैं भेजूंगी, और जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी उससे मैं वो प्रोडक्ट परचेज करूंगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब जब हम प्राइसेस कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती है, लाइक जिस तरह लिंक जनरेट करते हुए आपके पास ऑप्शन आ रही है ना कि आपने डिस्काउंटेड वाला लिंक जनरेट करना है या विदाउट डिस्काउंट जनरेट करना है। तो उसका मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्काउंट दे सकते हो। आपका बिजनेस है, आप उसके अंदर डिस्काउंट दे सकते हो, आपको ही बेनिफिट होना है अगर आप नहीं डिस्काउंट देते, लेकिन अगर आप देते हो तो भी काइंड ऑफ आपका बेनिफिट ही है कि आपका एक कस्टमर बन रहा है, जो कि हो सकता है आपका एक फ्यूचर में एक पक्का कस्टमर बन जाए, और आपका हो सकता है वो कल को टीम मेंबर बन जाए, या आपके साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाए इतना अच्छा कि वो कल को आपको आपका टीम मेंबर ही बन जाए। तो आप डिस्काउंट दे सकते हो, उसके लिए अपलाइन से पूछना जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर मेरे टीम मेंबर्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि एलोवेरा जेल्स फॉर एग्जांपल अगर 7,800 की बन रही है, तो क्या मैं इसको 7,000 में दे दूं, या क्या मैं इसको 7,500 में दे दूं, या फिर क्या मैं इसको 6,800 में दे दूं। तो वो देखो 5%, 10%, 20%, 15% का डिस्काउंट देना आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप देना चाहते हो तो इस चीज का इंतजार करने करके लेट मत करो अपने कस्टमर को कि अपलाइन एग्री करेगी तो फिर ही मैं दूंगी। आप खुद जस्ट गो अहेड, ठीक है, एंड जस्ट गिव द प्रोडक्ट ऑन डिस्काउंट इफ यू वांट। बस आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कट होगा, लेकिन आपका चलो एक कस्टमर बन जाएगा। तो आप चाहो तो आप डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन बस एक छोटी सी बात जहन में रखनी चाहिए कि डी वैल्यू नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट्स को इतना, मतलब टोटल अपना 30% डिस्काउंट में नहीं दे देना चाहिए कि बिल्कुल ही आपको कोई फायदा ही ना हो, उसका रिटेल प्रॉफिट ही ना मिल रहा हो। और फिर इस तरह का बिजनेस करने का क्या फायदा अगर आपको बीच में रिटेल प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा। और चले ठीक है, आपके सीसीज बन रहे हैं जो आपके प्रमोशन में काम आ रहे हैं, तो ठीक है, वो चीज समझ में आती है कि समटाइम्स बंदा थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट 15% या 20% डिस्काउंट इसलिए भी दे देता है कि चले मेरे सीसीज बन रहे हैं और मेरा जो है वो प्रमोशन हो रही है। लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे कैश भी मैटर करती है ना, तो कोशिश करें कि और दूसरा फिर प्रोडक्ट्स को हमने डी वैल्यू नहीं करना। तो कोशिश करें कि जरा मुनासिब सा डिस्काउंट देके, तो आप अपनी मर्जी से कुछ डिस्काउंट देके बिल्कुल डेफिनेटली अपने कस्टमर्स को बना सकते हो, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक हो गई यहाँ तक बात।